आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि हम अपनी आईनी हुदूद को बखूबी जानते हैं। हम दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आइन के आर्टिकल 19 में आज़ादी इजहार और इजहार राय की हुदूद मुतय्यन की गई हैं। आइन में आज़ादी राय पर वाज़ेह क़ुयूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। रिसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि असलहे की दौड़ से हमारे खित्ते में ताकत का तवाजुन भी बिगड़ने का इम्कान है। एक मजबूत फजाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारिह के रहम करम पर होता है। पाक फजाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। Assalamu alaikum and good morning. For a soldier, no player exceeds witnessing commissioning of smartly turned out young cadets radiating immense energies and promise for a very bright future. Today's display of professionalism and discipline demonstrates that our sons and daughters are ready like always to ensure the security, peace, progress and prosperity of this great country. You are the center of our hopes, the sentinels of our skies and the guarantors of our territorial integrity. You would be expected to live by the virtues of character, courage and competence, and your conduct would mirror not only your personal ethos but also that of your revered institution. You will shed your sweat and blood for the dignity of your motherland and will never hesitate to offer the ultimate sacrifice. I would like to quote our founding father, Muhammad Ali Jinnah, whose speech at this very academy on 13th April 1948 sums up the significance and the enduring mission of Pakistan Air Force. The Qaid said, and I quote, "A country without a strong air force is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build up its own air force as quickly as possible. It must be an efficient air force, second to none." Unquote. Dear graduating cadets, on every account, Pakistan Air Force has risen beyond the expectations of the nation and defended the skies of Pakistan against all odds with unmatched valor and professionalism. It has always maintained highest standards of training and morale and is now gradually advancing towards self-reliance and indigenization. The professionalism and brilliance of Pakistan Air Force has been clearly displayed in wars against our arch rival and profoundly in February 2019 in a short but seminal engagement against the misplaced calculus of our rival, who mistook our initial restraint as weakness. We shall never allow anyone to challenge our territorial integrity, sovereignty and the security of our beloved homeland. I must also acknowledge that Pakistan Air Force deserves recognition for its immense contributions in war against terror and intimate support to the land and naval forces. Ladies and gentlemen, the respect for international norms and laws is eroding fast. Gaza war is the latest reminder of what might can bring about. The human suffering and the indiscriminate killing of the elderly, women and children portends that we live in a world where violence is on the rise. Regardless of what our adversary says, another region where force is violently trampling over human rights and muzzling voices for self-determination is Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The silence of the world over Kashmir is deafening, but we will continue to extend moral, political and diplomatic support to the people of Kashmir till the day they are empowered to exercise their right of self-determination. Today, our nation confronts multidimensional threats in the forms of terrorism, shadow proxies, challenging economic environment, despicable propaganda amplified by social media and false narratives being spread by misguided elements of the society. I would specially urge you not to fall prey to misguided, misdirected, factually incorrect and politically motivated propaganda. As leader of the future, you should develop a critical mind to navigate through blurring lines between reality
perceptions and patent falsehood. Always remember, right is might, and not that might is right. Fight and never cower before coercion, blackmail, or terror. Dear cadets, Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, White Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Hence, those who blatantly trample the same very Constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherence. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. Dear mentors, guardians and cadets, I commend you on this day, particularly the cadets who have put up an immaculate display. I pray and hope that you would uphold the glorious traditions of self-sacrifice, supreme confidence, and professional excellence that have been the hallmark of Pakistan Air Force. Amongst you, I see the aces of tomorrow who would be our pride and our wings of hope. Be the likes of Rashid Minhas, Sarfraz Rafiqi, and MM Alam, and those who have rendered their services and lives toward preserving the prestige of our beloved country. Stay committed to the responsibility being assigned to you and be loyal to the state of Pakistan always, under all circumstances. If Allah helps you, no one can overcome you. May Allah Almighty grant you the will and the skill to defy gravity and leap towards greatness. Ameen. Pakistan Air Force, Zindabad, Pakistan, Paindabad. रिसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से आर्मी चीफ का खिताब आपने मुलाहिजा किया। पाकिस्तान ने किसी गैर मुल्की कुव्वत को अड्डे देने की बातें बेबुनियाद करार दे दी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि किसी गैर मुल्की कुव्वत को किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ अड्डे देने का कोई इरादा नहीं रखते। अड्डे देने के हवाले से सोशल मीडिया पर चलने वाली ऐसी तमाम बातें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान का कहना था कि अमरीकी वफ़द ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी तिजारत के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी वफ़द से मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के दूररस उमूर पर बात हुई। तर्जुमान का कहना था कि वो अमरीकी वफ़द के साथ मुज़ाकरात की तफसील में नहीं जाएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का मज़ीद कहना था कि भारत को मशवरा है कि ऐसे इक़दामात से गुरेज करे जिनसे LOC पर अमन ख़राब हो। भारत पर जोर देते हैं कि वो इश्तियाल बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज करे। तर्जुमान का कहना था कि भारत में मनशियात स्मगलिंग में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं। तफसीलात मौसूल होने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद रद्द-ए-अमल देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना था कि भारत का मावराए अदालत कत्ल नेटवर्क दुनिया भर में फैल चुका है। भारतीय एजेंट्स के दहशतगर्द हमलों के ठोस शवाहिद दुनिया के सामने रखे हैं। दुनिया भारत को उसके इक़दामात पर कटहरे मिलाए। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने शहजाद अकबर के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अपने शहरियों को निशाना बनाना हमारी पॉलिसी नहीं है। शहजाद अकबर के इल्ज़ामात बेबुनियाद और सियासी और गलत हैं। पाकिस्तानी इदारों के बारे में मनफी प्रोपेगेंडे के बारे में तर्जुमान का कहना था कि हम इदारों और ऑफिशल्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की मजम्मत करते हैं। इदारों और ऑफिशल्स के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी मुहिम बंद होनी चाहिए। एपेक्स कमेटी सिंध के इजलास में बच्चों को मनशियात से महफूज रखने के लिए स्कूलों की सख्त निगरानी और मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए इदारे कायम करने का फैसला किया गया है। इजलास में असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी का फैसला हुआ है। कल से कानून नाफिज करने वाले इदारे इस सिलसिले में एक्शन लेंगे। वजीर इत्तलात सिंध का कहना है कि बगैर वर्दी के जिसने असलहे की नुमाइश की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में सिंध एपेक्स कमेटी का 31वां इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सीनियर वजीर शर्जील मेमन, वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में स्कूलों में मनशियात के फैलाव की रोकथाम और बच्चों को उससे महफूज रखने के लिए स्कूलों की सख्त निगरानी का फैसला किया गया है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से फैसला किया गया है कि मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए इदारे कायम किए जाएंगे।
एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट दीगर सूबों और वफाकी इदारों के साथ मिलकर ऑपरेशन को तेज करेगा। इस मौके पर सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना था कि मनशियात की रोकथाम के लिए वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ कोऑर्डिनेशन में है। ज्वाइंटली कमेटीज बनेंगी, ज्वाइंटली टीमें बनेंगी, कमेटीज में ज्वाइंटली टीमें बनेंगी। वो टीम्स जो हैं वो आपस में डेटा शेयर भी करेंगी और डेटा शेयर के बाद मुख्तलिफ जगहों पर ज्वाइंट ये प्रपोज किया गया कि ज्वाइंट चेक पोस्ट भी बनाई जाएंगी। कोर कमांडर कराची का कहना था कि मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद की जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि आज का इजलास गुज़िश्ता एपेक्स कमेटी के इजलास का तसलसल है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने अमन व अमान पर कल अहम इजलास किया था। सदर मुमलिकत के अहकामात पर सिंध हुकूमत मुकम्मल अमल करेगी। वजीर आला सिंध का कहना था कि सिंध हुकूमत सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए सख्त इकदाम कर रही है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे, रेंजर्स, वो एक्शन लेंगे जहाँ पे जो शख्स वेपन का डिस्प्ले करते हुए नजर आया। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है। स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान के लिए जामे हिकमत अमली बनाई गई है। उन तमाम महरिकात पर काम हो रहा है जो स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान के असबाब हैं। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी सैयद आसिफ हुसैन ने इस्तीफा दे दिया है। उमर हमीद को दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, क्या मामला है, क्या वजह बनी? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने उमर हमीद जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे उन्हें दोबारा सेक्रेटरी तैनात कर दिया। उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उन्हें 2 साल के लिए तैनात किया गया है। और जो इलेक्शन कमीशन के मौजूदा सेक्रेटरी थे आसिफ हुसैन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। और उन्होंने अपने इस्तीफे की वजूहात में अपनी बीमारी की, अपनी तबीयत की खराबी का जिक्र किया है और उनकी जो इस्तीफा जो है वो इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर लिया। जबकि उमर हमीद जो है उन्होंने भी जनवरी में सेहत खराबी की वजह से इस्तीफा दे दिया था, जिसको मंजूर कर दिया गया था। जी, शुक्रिया आपका नौशीन इस तफसील के लिए। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम के तहत इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ अवामी असम्बली का इनेकाद किया जा रहा है। जलसे के सिलसिले में न्यू एम ए जिन्ना रोड पर स्टेज बनाया गया है। DC कमिश्नर ईस्ट ने अवामी इज्तिमा के लिए JUI को इजाज़तनामा जारी नहीं किया। तफसील इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम आज कराची में पावर शो करेगी। न्यू एम ए जिन्ना रोड को जलसागाह बनाया गया है, जिसके लिए वहां कंटेनर्स लगाकर स्टेज भी बना दिया गया है। अवामी असेंबली से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। जलसे के दौरान ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रूट प्लान भी मुरतब किया है। जलसे में शिरकत के लिए आने वाले अफराद की पार्किंग एक्साइज चौरंगी, बाग जिन्ना, निस्फ, मज़ार कायद और मज़ार कायद VIP गेट के करीब होगी। अवाम गुरु मंदिर से सोल्जर बाजार, जमशेद रोड से जेल रोड फ्लाईओवर और बनोरिया टाउन से तारिक रोड जा सकते हैं। शारा कायदीन से आने वाले ट्रैफिक को नूरानी सिग्नल से आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। शहरी नूरानी सिग्नल से खालिद बिन वलीद रोड का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी रोड से आने वाला ट्रैफिक जेल चौरंगी से शहीद मिल्लत मोड़ा गया है। जेल चौरंगी से जमशेद रोड आने वाला ट्रैफिक सोल्जर बाजार की तरफ मोड़ा गया है। रीगल से न्यू एम ए जिन्ना रोड कॉरिडोर 3 तक आम पब्लिक को जाने की इजाजत नहीं होगी। शहरी सदर दवाखाना से लकी स्टार से शारा फैसल का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। नाजमाबाद और 3 हट्टी से आने वाले हैवी ट्रैफिक को लसबेला से गुरु मंदिर जाने की इजाजत नहीं है। एम ए जिन्ना रोड तिब्बत सिग्नल से आने वाली ट्रैफिक को सोल्जर बाजार की तरफ मोड़ा गया है। लियाकताबाद 10 नंबर से 3 हट्टी और गुरु मंदिर से हर किस्म का हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। दूसरी जानिब SSP ईस्ट की रिपोर्ट पर डिप्टी कमिश्नर ने JUI को जलसा करने की इजाजत नहीं दी है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MKM के वफ़द ने कराची में मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात में कराची समेत सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मोहसिन नकवी का कहना था कि मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको ज़ाती इख्तिलाफात पसे पुश्त डालकर वतन अजीज़ का सोचना है। सियासी जमातों के इत्तिफाक़ राय से ही मुल्क के गंभीर मसाइल हल हो सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज डॉक्टर सुहेल सलीम मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर सुहेल सलीम ने इस्तीफ़ा चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भेज दिया है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान से। सुहेल, क्या वजूहात सामने आ सकी हैं इस्तीफे की?
जी सर, कुछ देर पहले हमने ज़राए से ये खबर दी थी कि डॉक्टर सुहेल सलीम जो कि डायरेक्टर हैं मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज की, उन्होंने अपना इस्तीफा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी को भिजवा दिया है। और अब कुछ ही लम्हे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक आज़ाद मेडिकल कमीशन तरतीब दिया था, उसकी रिपोर्ट की रोशनी में अपनी तमाम तर तफसीलात से आगाह किया और उसमें बताया गया है कि डॉक्टर सुहेल सलीम जिन्होंने इस्तीफा दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और वो इस्तीफा कबूल कर लिया गया है। इसके साथ साथ उस जो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी उसकी तफसीलात से भी आगाह किया गया है, जिसमें कमेटी ने ये निशानदेही की है कि फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह जिन्होंने PSL की 8वें एडिशन में बड़ी उम्दा बॉलिंग की थी और उसके बाद उनका डेब्यू भी हुआ था इंटरनेशनल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से, उसके बाद वो पुन्नी की इंजरी का शिकार हो गए थे। और कमेटी ने जो आजादाना तौर पर बनाई गई थी उसका कहना है कि जो मेडिकल बोर्ड पैनल था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो एहसानुल्लाह की इंजरी थी उसको दुरुस्त अंदाज से नहीं देखा गया और ना ही उसका इलाज किया गया है जिस तरह के इलाज किया जाना चाहिए था। और अब रीहैब तजवीज किया गया है एहसानुल्लाह को और 6 से 12 महीने का वक्त बताया गया है कि इस दौरान उनका रीहैब होगा। और अगर वो इस दौरान भी उनको कोहनी की इंजरी से निजात नहीं पा सकते तो फिर लास्ट ऑप्शन के तौर पर सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। जहां तक डॉक्टर सुहेल सलीम का ताल्लुक है, उनके हवाले से इससे पहले भी ये बातें सामने आना शुरू हो गई थी कि एहसानुल्लाह का जो इलाज है वो दुरुस्त अंदाज से नहीं किया गया और चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपनी मुतअद्दिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि एक्शन लिया जाएगा जो भी इसमें मुलव्वस पाया गया। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पूरी एक रिपोर्ट की रोशनी में अपनी उन्होंने एक इलामिया जारी किया गया, उसमें डॉक्टर सुहेल सलीम जो इसकी रिपोर्ट आने से पहले ही मुस्ताफी हो गए थे, शायद उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, वो मुस्ताफी हो गए थे और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका इस्तीफा भी कबूल कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान, हमें तफसील से आगाह कर रहे थे क्या वजह बनी। कराची से अहम खबर आपको देंगे। कराची के नज़दीक गडाब काठोर के करीब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मलीर के करीब 5:52 पर ज़लज़ले का झटका महसूस किया गया। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 2.3 थी और मरकज़ मलीर के शिमाल मशरिक से 38 किलोमीटर दूर था। आपको बताते हैं कराची के करीब गडाब और काठोर के करीब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मलीर के करीब 5:52 पर ज़लज़ले का झटका महसूस किया गया और ज़लज़ले की शिद्दत 2.3 रिकॉर्ड की गई, जबकि मरकज मलीर के शिमाल मशरक से 38 किलोमीटर दूर था। बताया जा रहा है कि गडाब और काठोर के करीब भी ज़लज़ले के झटके महसूस। इससे पहले भी 25 अप्रैल को कराची में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे और जो शिद्दत थी वो 3.2 रिकॉर्ड की गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब में अमरीकी सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। ज़राअत, इंडस्ट्री और IT के शोबे में अमरीका के इश्तिराक का खैर मकदम करेंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात के दौरान अवाम दोस्त प्रोजेक्ट्स पर तेज़ी से अमल कराने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविशों को सराहा। उनका कहना था कि वज़ीर आला की अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों में खुसूसी दिलचस्पी काबिल सताइश है। अमरीका गुर्बत के खात्मे और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत के साथ मजीद काम करना चाहता है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि अमरीका और पाकिस्तान के इक़्तिसादी ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित हैं। पंजाब में सरमायाकारी का पोटेंशियल मौजूद है। एक मुस्तहकम हुकूमत ही पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाल सकती है। उनका कहना था कि हुकूमती मुआशी पॉलिसियों से महंगाई में कमी आ रही है। आवाम को बुनियादी हुकूक और बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बैरून मुल्क सरमायाकारी से कबल बैनुल-अक़वामी सालिसी और ट्रांसैक्शंस के फोरम से रुजू करना पड़ता है। सालिसी का जदीद कानून मुल्क में नाफिज होना उनकी नज़र में एक ज़बरदस्त काविश है। सालिसी के कानून की दोबारा तश्कील से मुताल्लिक़ तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि सालिसी के जदीद कानून से पाकिस्तान में सरमायाकारी मुआशी इस्तेहकाम में बेहतरी आएगी। कम पैसे से मुताल्लिक़ केसेस डिस्ट्रिक्ट लेवल और बड़ी रकूम से मुताल्लिक़ मामलात सुप्रीम कोर्ट में जाने चाहिए। सालिसी क़वानीन न होने के बायस बैनुल-अक़वामी सरमायाकार कंपनियां पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी अदालतों में जाती हैं। खुशी है कि इस कानून साजी से बैरून मुल्क तवील मुकदमे बाजी से बचा जा सकेगा। सालिसी से मुताल्लिक़ कानून में वज़ारत ख़ज़ाना हर किस्म की मुआवनत करेगी।
मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद अली टब्बा ने कहा है कि हुकूमत का काम पॉलिसी देना है, अमल तो हमें करना है। बैरून मुल्क से सरमायाकारी लाने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा। मोहम्मद अली टब्बा ने मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन, जियो और जंग ग्रुप की पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो मुहिम की भी तारीफ की। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये बहुत ही वाइब्रेंट कंट्री है, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी मैनेजमेंट हमारी इतनी अच्छी नहीं रही है। गवर्नमेंट तो आपको फैसिलिटेट करती है, आपको पॉलिसी देती है। हमें चाहिए कि हम भी अपना हिस्सा पाकिस्तान की स्टेबिलिटी में डालें, पाकिस्तान की ग्रोथ में डालें, और जहाँ जाएं पाकिस्तान से बाहर हम पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव मैसेज लेके जाएं, ताकि पाकिस्तान की जो लोगों के बारे में जो ख्यालात हैं उसको चेंज करें, और इस मुल्क के अंदर हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, और जो कुछ एज इंडिविजुअल हम कर सकते हैं, हम अपनी कैपेसिटी में हमें इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, और इस मरतबा हमें पाकिस्तान के लिए कर डालना है। सनअतकार, सरमायाकारी और स्टॉक ब्रोकर आरिफ हबीब का कहना है कि सरकारी इदारे बेचें, कर्ज अदा करें। 90,000 अरब रुपए मालियत के सरकारी इदारे कर्ज लेकर बने हैं, इनका सूद 4,000 अरब रुपए है। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन, जियो और जंग ग्रुप की मुहिम पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो के बारे में आरिफ हबीब ने कहा कि कर डालो पाकिस्तान के लिए। हमारी जो गवर्नमेंट SOEs हैं, स्टेट ओन इंटरप्राइजेस का जो है एक बहुत बड़ा अमल दखल है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ब्लीडिंग जो है वो रहती है, और हमारे जो हुकूमती इदारे हैं वो बहुत बड़े लॉसेस करती है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक 19 ट्रिलियन रुपीस के एसेट्स पाकिस्तान ऑन करता है, और वो सारे का सारा जो अमाउंट है वो बोरोड मनी पे जो है वो इन्वेस्टेड है। तो उससे पाकिस्तान के ऊपर जो है 4 ट्रिलियन रुपीस के लगभग का जो है वो इंटरेस्ट का बोझ भरना पड़ता है पाकिस्तान को। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द इन इदारों को प्राइवेटाइज़ किया जाए, इनको मोनेटाइज़ किया जाए, और इससे जो है वो कर्ज़ों को जो है वो पे बैक कर दिया जाए, ताकि ये बोझ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर से ख़त्म हो। तो इस दफ़ा जो है वो ये काम जो है पाकिस्तान के लिए कर डालो। कराची में तैनात बरतानिया की डेप्यूटी हाई कमिश्नर सारा मूनी ने मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन, जियो और जंग ग्रुप की मुहिम पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो को मुस्बत कदम कहा है। अपने पैगाम में सारा मूनी का कहना था कि कर गुजरो, तकदीर में लिखा वक्त गोया यही है। I think the time is right for Pakistan. I've been here 18 months now, and they've been a difficult 18 months economically. But what I've seen is that people now really understand the need for these structural reforms in the economy. And if Pakistan can come together to deliver these reforms, to deliver this potential that it's in its population, to deliver its exports, to exploit its phenomenal resources and beautiful country, then Pakistan can change so quickly. I think now is the time for Pakistan. Pakistan. IBA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अकबर जैदी ने कहा है कि सरकारी इदारे टैक्स देने वालों पर बोझ है, क्या रखना है, क्या बेचना है, फैसला करें। इस मामले में देर नहीं की जा सकती। MKRF की मुहिम पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो की भी तारीफ की। जी, अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है, यानी जो सरकारी तहवील में जो इदारे हैं, उस पर बहुत बहस हुई है। कुछ ऐसे हैं जो मुनाफा कमाते हैं, वो बेहतर हैं, बेहतर तरीके से चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपके मेरे जो टैक्स के जो पैसे होते हैं वो उधर ही जा रहे हैं। और ये फैसला करना चाहिए किसको हुकूमत खुद संभाले, अगर वो मुनाफा कमा सकती है, और अगर मुनाफा नहीं कमा सकती और अगर वो समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ये जो टैक्स पेयर्स के जो पैसे हैं उसमें जा रहे हैं, तो फिर उसका कुछ और फैसला करना पड़ेगा। इधर भी देर नहीं कर सकते, जल्दी फैसला करो, कर डालो। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव एहसान मलिक ने कहा है कि इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं, उनकी निजकारी करें। वक्त आ गया है कि हम कदम उठाएं, कौम अब के बार ये काम कर डाले। पाकिस्तान अब सरकारी इदारों के बढ़ते हुए नुकसानात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ख़ास तौर पे जब प्राइवेट सेक्टर उन्हीं सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहे हैं और बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे एयरलाइंस। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो टैक्स के दहंदगान हैं वो भी चंद हज़ार लोगों को मुलाजमत पर रखने के लिए मज़ीद टैक्स देने को तैयार नहीं है। प्राइवेटाइजेशन ही एक तरीका है इन लॉसेस को रिज़ॉल्व करने का। वक्त आ गया है कि हम ये कदम उठाएं
बजाय इसके कि रिस्ट्रक्चरिंग में पड़े। कर डालो पाकिस्तान के लिए। वफाकी हुकूमत ने डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत जल्द नई डिजिटल अथॉरिटी के क़याम का बिल पार्लियामेंट में पेश करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने दोनों वफाकी वज़रा से डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर बिल लाने पर मुशावरत की। कानून साजी के लिए मुस्तवदा तैयार कर लिया गया है। बिल जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि FIA साइबर क्राइम विंग डिजिटल राइट्स की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए मौजूद फोरम नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे, ख़वातीन की हिरासानी, बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम और डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून या मैकेनिज़्म बहुत ज़रूरी है। FIA की महारत नहीं कि वो साइबर क्राइम या डिजिटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ का कहना था कि इस सिलसिले में मीडिया और सिविल सोसाइटी से तजावीज़ तलब की हैं। ऑनलाइन हरासमेंट है, वो चाहे विमेन हरासमेंट हो, ख़वातीन को हरासा किया जाना हो, वो चाहे पोर्नोग्राफी हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, वो चाहे चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन हो, वो चाहे प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज़ हो, वो फेक और प्रोपेगेंडा बेस्ड न्यूज़ जो सोशल मीडिया के ज़रिए फ्लोट की जाती है, जिससे लोगों की इज्जतें उछाली जाती हैं। तो ये कैंपेन देखने में अगर एक ट्रेंड मेरी नज़र से गुजरा, उसमें कुछ एंकर्स ने भी अपनी वीडियोस पोस्ट की और ये मुतालबा रखा गया कि कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए जिसके तहत कोई ऐसी अथॉरिटी हो जो हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। डिजिटल राइट्स की वायलेशन के ऊपर हमारे पास क्या मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म एक ही है, वो है FIA का साइबर विंग। अब FIA बना था वाइट कॉलर क्राइम को डील करने के लिए, FIA बना था स्पेशल लॉ के तहत स्पेशलाइज क्राइम्स को डील करने के लिए। FIA की ये एक्सपर्टीज नहीं है कि वो साइबर क्राइम को डील करें। तो इस पे बातचीत भी चल रही है और सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चली वो भी हमने उसको बड़ी संजीदगी से देखा, उस पर गौर फिक्र किया। बतौर पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है कि डिजिटल राइट्स की प्रोटेक्शन के ऊपर हम सब मिलके काम करें और कम से कम जहां पे स्टेट का नुकसान है, किसी फर्द का नुकसान है, किसी बच्चे का नुकसान है, किसी खातून का आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किसी का चेहरा पकड़ते हैं, किसी और पे लगाते हैं, वीडियो वायरल कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लाहौर में पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान ने किसानों से इजहारी यकजहती के लिए रैली निकाली, धरना दिया। इस मौके पर अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर का कहना था कि पंजाब हुकूमत किसानों का इस्तेहसाल कर रही है। जब तक एक एक दाना गंदम किसानों से खरीदी नहीं जाती, एहतजाज जारी रहेगा। ऑपोजिशन अरकान और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने किसानों से इजहारी यकजहती के लिए पंजाब असेंबली से फैसल चौक तक रैली निकाली, जहां शुरका ने धरना दिया। मलिक अहमद खान भच्चर का मजीद कहना था कि जाली हुकूमत ताहाल गंदम की खरीदारी के लिए पॉलिसी नहीं बना सकी। इनके अपने अरकान भी हुकूमत पर अदम एतमाद कर चुके हैं। हुकूमत किसानों की पकड़ धकड़ कर रही है।